Hello friends, my name is Atul Gadam. This video is for 10th standard. Name of content is a trigonometric ratios. This question is from R.D. Sharma, page number 10.25, example number 28. Question number 28 is state whether the following are true or false. Some statements are given. We want to identify these given statements are true or false. जस्टिफाई योर आंसर एंड हमें जस्टिफिकेशन भी उसका लिखना है. पहला दिया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1. tan a की वैल्यू हमेशा 1 के छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, ऐसे उनका मानना है. अगर आप टेबल का ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ आपको एक बात समझ में आएगी. दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज अ false. Why this statement is a false? Because we know that tan A or the tan 45 degree that is equals to 1, tan 60 degree that is equals to अंडर रूट 3. अगर आप अंडर रूट 3 की वैल्यू डिवीजन मेथड से फाइंड करोगे तो वो आएगी 1.732 समथिंग. मीन्स हियर द tan 45 इज 1 विच इज नॉट लेस देन 1. tan 60 is a root 3. Root 3 means 1.732 and this one is a greater than 1. So the given statement is a false. Okay. Second statement is a sec A that is equals to 12 upon 5 for some values of angle A. यह हमें ट्रू है या फॉल्स है यह स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. तो आप अगर अच्छी तरीके से इसे देखोगे तो sec A का बेसिक फॉर्मूला याद कीजिए. व्हाट इज मीन बाय sec A? sec A that is equals to hypotenuse upon adjacent side. Okay, hypotenuse upon adjacent side. Here compare between hypotenuse and adjacent side, numerator and denominator. अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में विचार करोगे तो आपको एक समझ में आएगा. Side opposite to 90 degree is known as the hypotenuse and hypotenuse is always greater than the remaining two side, or the hypotenuse is greater than the sides making which are right angle. Okay, sides making right angle यानी hypotenuse सबसे क्या होगा, longer side होगी. This one is the longest side in a right angled triangle. Means यहाँ क्या होगा, hypotenuse is greater than adjacent side. Hypotenuse is greater than adjacent side means क्या, numerator is greater than denominator. यानी हमेशा sec A में क्या होगा, numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator means given fraction is a improper fraction. अब यहाँ sec A की वैल्यू क्या दी है, 12 upon 5. Here also 12 is greater than 5. Numerator is greater than denominator means this one is also improper fraction. So the answer is true. Means this statement is a completely true. Is that clear my friends? Then next one. थर्ड स्टेटमेंट है cos A is the abbreviation. Abbreviation यानी short form. cos A is a abbreviation. cos A is a short form used for cosecant of angle A. अगर आपने इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो अगर मेरा देखा है तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा. मैंने उस वीडियो में बताया था कि हर एक रेशो का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नेम क्या होता है और हम एब्रीवेशनल फॉर्म क्या यूज़ करते हैं. जैसे कि हम cos A को, cos A इज अ एब्रीवेशन ऑफ cosine A, cosine of angle A, and
कोसेकेंट ए जो है उसका एब्रीवेशनल फॉर्म होगा कोसेक ए। समझ में आया दोस्तों? कोसाइन ए का एब्रीवेशन फॉर्म होगा कॉस ए और कोसेकेंट ए का एब्रीवेशनल फॉर्म होगा कोसेक ए। यहां क्या कहा है? कॉस ए इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ए, लेकिन कोसेकेंट ए का एब्रीवेशनल और द शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोसेक ए। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Is that clear, my friends? Next one is fourth one is a cot A is a product of cot and A. Means क्या कहा है इन्होंने? cot A is a product of cot ratio and angle A. cot ratio यानी cot ratio की जो वैल्यू आएगी और angle A की वैल्यू है, इनका मल्टीप्लिकेशन cot A है। ऐसे इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कॉट ए का मतलब क्या होता है? कॉट ए मीन्स एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। व्हाट इज कॉट ए का मतलब है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ओके, मीन्स कॉट ए का मतलब कॉट एंड ए का प्रोडक्ट है, ऐसे कुछ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। आंसर इज फॉल्स एंड जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हो कॉट ए इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट रेशियो एंड एंगल ए। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट वन इज इन अ फिफ्थ स्टेटमेंट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 सम एंगल थीटा, ऐसे कुछ दिया है। फॉर सम एंगल थीटा, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, फॉर सम एंगल थीटा। ओके, अब इसका अगर इसके बारे में अगर आप सोचोगे तो क्या समझ में आएगा? व्हाट इज साइन थीटा दोस्तों? साइन थीटा का रेशो होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिग्री अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, यानी साइन थीटा क्या है? अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। आप राइट एंगल के बारे में सोचोगे, फिर एक बार राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचोगे तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आपको यहाँ समझ में आएगा कि अपोजिट साइड ऑफ theta degree is less than the hypotenuse. Opposite side of theta degree is less than the hypotenuse, means opposite side is at the numerator place, means numerator is less than the denominator. Numerator is less than the denominator. Numerator less है यानी गिवन फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए साइन थीटा के बारे में, सिर्फ साइन 90 छोड़ के बाकी सब वैल्यू क्या होते हैं? 1 से लेस देन होते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं। सिर्फ साइन 90 दैट इज इक्वल्स टू 1 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और उसे हम क्या कहते हैं? साइन 90 इज एन इंटीजर, और साइन 90 छोड़ के बाकी के सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। हियर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मीन्स अपोजिट साइड इज ग्रेटर देन हाइपोटेनियस। ये ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? अगर आपके बेसिक्स अच्छी तरीके से हैं तो आपको ये ट्रू और फॉल्स लिखना कुछ दिक्कत नहीं जाएगा। ओके, होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।